Good afternoon, everyone. So, everybody knows that today's topic is open educational resources. Any idea about this term? Why we people are considering this kind of topics, or what is the practical use of these topics? Because everybody, you people are so good on net, you can put the topic on the Google and you will get the results. So, why this session is required? Anything that comes in your mind? For what purpose? Open educational resources supposed to teach you. Whenever you will take any topic or any particular task, did you get any kind of certificate that yes, you have done this or you have achieved this kind of the expertise in yourself or not? So today we will discuss about all these resources that will benefit you while giving you the certification that will add on to your CV also. एंड इट इज नॉट इन योर प्रीमाइसेस एरिया कि अगर आप डिसिप्लिन एरिया आपका बीकॉम ऑनर्स है सो यू सपोज टू डू द कोर्स वर्क्स इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन एरिया यू कैन ऑप्ट द एरियाज in whatever interest you have. For example, in our college we have seen that lot of children have the interest in their photography, so you can do photography certification course also while doing your graduation. That is the purpose of the open educational resources. Other purpose of the open educational resources is that they will give you the grant. Yes, you can use it, you can modify it, and you can publish it in your own style, because there are some publishing issues. But if you will use this open educational resources, this publication issue will never will come. Nobody will going to ask you why you have used this picture, this is mine. So in the open educational resources, you can use the picture, you can use the content and the data, and then you can proceed further on. Let me share with you my screen so that we will work together. And I am writing certain websites. We will discuss about the website so that we come to know what kind of the benefit we have. Is my screen visible? Can everyone see that I have opened this Google? Yes, ma'am. Okay. So I'm writing the first website. Everyone write with me. It is the swayam.gov.in. So what kind of the benefit you will have while doing this open educational resources? This is the डिक्लेरेशन दैट कि आपको किस तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं आप आगे। अब मुझे क्या पता मैं किस तरीके के कोर्सेज कर सकती हूँ, तो इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया हुआ है यस आई कैन एक्सप्लोर द कोर्सेज। व्हाट काइंड ऑफ द कोर्सेज गोइंग ऑन, उनका ड्यूरेशन क्या है, उनका कितना क्रेडिट है, किस लेवल के कोर्सेज कौन बच्चा कर सकता है, ये इन्होंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है। आई एम एज्यूमिंग दैट जो मेरे पास क्राउड है अभी 30-35 स्टूडेंट्स का, दैट मोस्टली बिलोंग टू बीकॉम ऑनर्स और बीबीए मैनेजमेंट साइड्स के बच्चे ज्यादा हैं। सो आई विल ट्राई टू टेक अप द एग्जांपल्स फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। इस पोर्टल पे आप देखेंगे, इस पोर्टल के अंदर आपको कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे। दैट मींस ये पोर्टल है, इसके अंदर हमारे पास पूरी लिस्ट है। एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज चाहिए आपको, सीईसी अप्रूव्ड चाहिए, इग्नू अप्रूव्ड चाहिए, आईआईएमबी, एनसीईआरटी अप्रूव्ड, एनआईओएस, NITTR, NPTEL, and UGC approved. So let us say I am not choosing any particular category and I am saying that let me have all the courses. फिर आपको कोर्स ड्यूरेशन किस तरीके का चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी होता है यू हैव अ वेरी फ्यू टाइम, सो यू वांट दिस 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks, and so on. Usually will people will prefer, or the students I can say prefer 12 weeks maximum, because after 12 weeks that means कितने हो गए 3 months are there, so you people are lined up with your internal and external papers or the projects and the vivas, so that will be the maximum tenure that usually people will take. So let us say I am also opting for the 12 weeks courses.
देन देयर आर दी एग्जाम डेट्स विच इज ऑटोमेटिकली फिल्ड इन दिस पोर्टल कि आप जो ले रहे हैं कोर्स उसकी डेट्स किस तरीके की प्रेफर्ड हो. आई एम स्किपिंग दैट बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल द डेट्स, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग. एंड व्हाट काइंड ऑफ द कोर्स क्रेडिट यू रिक्वायर्ड. यूजुअली कोर्स क्रेडिट जो वाले होते हैं वो ऑलवेज बेटर होते हैं एज कंपेयर टू द नो क्रेडिट कोर्सेज, क्योंकि सूनर और लेटर वेन एवर यू विल डू फॉर द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, these credits will count in your profile even you are doing these courses at the level of undergraduate. So let me take a tick of all so that I come to know what kind of the categories you have. Then there is written that category. You belong to which category? What is your area of interest? Do you want the annual refresher program in teaching? So this is mainly for the faculties. Architect and planning, engineering, humanities, law, management and commerce, and so on. So the list is given. So let me click this management and course. Then subcategories will pop up. तो सब कैटेगरीज कहते हैं अब आपका मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के अंदर स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. अकाउंटेंसी, एनालिटिकल एंड डिसीजन, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की जॉब बहुत आ रही है, डेटा साइंस की जॉब बहुत आ रही है, और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो इन लोग वो वाले को लोग ये वाले कोर्सेज ज्यादा पसंद करते हैं. पर्टिकुलर एरिया जाना चाहते हो आफ्टर बीकॉम और बीबीए, बैंकिंग की लाइन में जाना चाहते हो, इंश्योरेंस लाइन में जाना चाहते हो, तो यू कैन टेक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. business administration, commerce, computer application, and so on. core finance area, एचआर एंड एम ओबी. आप लोग जब सिक्स सेमेस्टर में जाते हैं या फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हैं तब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है विच स्पेशलाइजेशन यू वांट टू ऑप्ट. तो अगर आपने इस तरीके की स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करी है सो यू कैन टेक एनी वन दैट विल हैव यू एनहांस योर वर्क. So let us say I am not taking anything over here. I am not choosing any specific category. Now I want to see कि भाई हर एक में डिटेल क्या है. So can we see the detail? अब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, बट आई वांट डिटेल. क्या डिटेल है इनकी, किस तरीके के कोर्सेज हैं, कैसे फंक्शन करते हैं. ई कॉमर्स आप लोगों का एक सब्जेक्ट आता है, पढ़ चुके हैं कि नहीं. ई कॉमर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस. कंप्यूटर एप्लीकेशन यू हैव स्टडीज इन द फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आई गेस. पढ़ा Yes, ma'am. In first semester. इन फर्स्ट सेमेस्टर. सो चलो यही वाला एक्सप्लोर करते हैं, ये थोड़ा जाना पहचाना सा नाम है. अब मुझे हर एक कोर्स की डिटेल भी जाननी है और उनकी आइडिया ब्रीफिंग भी करनी है बिकॉज वी पीपल आर वर्किंग ऑन गूगल मीट. सो ये आप इसका पॉपअप आ जाता है बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द गूगल मीट, सो आई हैव ब्लॉक द एक्सटेंशन फॉर द वीडियोस फॉर आवर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो हमारी गवर्नमेंट की साइट है ये इस तरीके से एनरोल करती है. अब मैं ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स करना चाहती हूँ इन फ्यूचर, सो आई मस्ट नो 2-3 थिंग्स अबाउट दिस कोर्स जो मैं एनरोल करने से पहले जान लूं, क्योंकि ये ज्वाइन का बटन क्लिक होते ही आई विल बी एनरोल्ड. कौन इसका कोऑर्डिनेटर है, तो मुझे पता लग गया इग्नू इज द कोऑर्डिनेटर. हु इज गोइंग टू टीच अस, तो डॉक्टर सुबोश केशवरानी इज गोइंग टू टीच अस. वेदर आई नो दिस टीचर और नॉट, मुझे इस नाम से कोई मतलब नहीं है. कोर्स का स्टेटस क्या है, सो इट इज एन अपकमिंग स्टेटस, ये पाइपलाइन में है स्टेटस. कोर्स टाइप कोई पर्टिकुलर कोर्स टाइप के लिए एप्लीकेबल है बिकॉज कंप्यूटर एप्लीकेशन इज यूज्ड बाय लॉट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. ड्यूरेशन बताया इन्होंने स्पेसिफिकली 12 वीक्स. स्टार्टिंग डेट इन्होंने बताई है दैट 1 सितंबर वाज द स्टार्टिंग डेट. कैटेगरी बताई मेनली ये कॉमर्स वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है. हमने भी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स डाला था तो ऑब्वियसली दिस वन पॉइंट आउट. क्या इसको कोर्स करने के बाद आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे. सो यस इट इज मेंशन इन दिस दैट यू विल गेट दिस क्रेडिट पॉइंट विद द 4 पॉइंट्स. लेवल कैसा होगा इस कोर्स का, अंडर ग्रेजुएट का कोर्स का लेवल होगा, तो यानी आप लोगों ने जैसा पढ़ा है वैसा होगा. अब मैंने जैसा पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, आई जस्ट वांट टू लुक एट द करिकुलम आल्सो, सो लेट मी टेक इनटू दैट.
तो इन्होंने आपको ये डिटेल भी दी होती है कि ये इलेक्टिव कोर्स है, थर्ड सेमेस्टर में आता है, बीकॉम ऑनर्स में आता है, 20 यूनिट्स आर देयर which is divided into two parts which have a 3 blocks and the 12 units part of this, and then you can see a course layout. This course layout is given in all the courses of स्वयं. किसी भी विंडो को ओपन करोगे आपको डिटेल पता लग जाएगी कि कौन से वाले कोर्सेज कब कब एप्लीकेबल होंगे। तो ये आपको पूरी डिटेलिंग बता रहे हैं। आई होप आप इसको पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके का कोर्स है, बिकॉज आई एम नॉट एन आईटी फैकल्टी, सो आई रियली डोंट नो। आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर फॉर्मूलाज, फंक्शंस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क, ये सब चीजें भी इसमें सिखाई जाएंगी। एडवांस ऑप्शन होती हैं स्प्रेडशीट्स में, गूगल वर्क में, तो आप इस पूरी डिटेलिंग को पढ़ के कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये आप लोगों को बुक्स एंड रेफरेंसेस भी देते हैं। तो हो सकता है मैं ओपन एजुकेशनल सोर्स से ये चाहती हूँ कि मुझे जो मेरा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ थोड़ा सा मटेरियल मिल जाए, तो क्या मैं इस मटेरियल को एक्सेस कर सकती हूँ? तो लेट मी चेक दिस थिंग। आई हैव जस्ट क्लिक दिस हाइपरलिंक एंड आई मूव टू द नेक्स्ट वन। उन्होंने लिखा हुआ था ना उसमें ई ज्ञान कोश करके .ac.in करके। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वेबसाइट। और देखिए उन्होंने क्या दिखाया कि अच्छा कंप्यूटर एप्लीकेशन का चाहते हैं, इशू डेट चाहते हैं, and see there is the collection of the community, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इमेंस। तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके अंदर और आपको इस तरीके से कि कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, दैट पॉपअप विंडो विल ओपन। तो आपको इससे मटेरियल मिल जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है यूनिट 15 ये मटेरियल है, व्यू एंड ओपन। सो लेट मी ओपन दिस। And in this way you will get this open educational resources material also. Sometimes we will not feel that we have to enroll in the course, sometimes we feel that we need a good material. So in this way, in books and references, lot of faculty has already given this open educational resource material which is already created and presented by the experts. तो ये जितना भी काम है सब expertise का काम है। तो ये देखो ये 19 पेज का उन्होंने विद डिटेल, विद फोटोज, हाउ टू ऐड द ट्रांजिशन स्टाइल, शेप्स, images, whatever you want to learn in the computer and whatever is the content, depending on the content they have given you this kind of material. So this is the one way of the open educational resources. In fact I am a fifth semester coordinator और मैं अपने बच्चों को बार बार बोलती हूँ प्लीज गो ऑन द स्वयं, स्वयं पे जाके कोर्सेज करो। और अब की बार हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने स्वयं पे कोर्सेज लिए भी हैं। तो मैं बाहर वाले बच्चों को भी यही बोलूंगी कि कभी भी आपको, क्योंकि आपको प्रोफेशनल एज दिखना है आगे, आपकी डिग्री से खाली आप उसको ब्यूटीफाई नहीं करवाओगे। देयर इज ऑलवेज एन टॉपिंग ऑन द आइसक्रीम। सो दैट टॉपिंग विल बी दिस एजॉन कोर्सेज, और इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। लास्ट में आपको पेपर देना होता है और उस पेपर का क्राइटेरिया भी फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट ₹1000 दे विल चार्ज फॉर डूइंग द पेपर, फॉर यूजिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। In Delhi, there are n number of these centers and usually the paper will come in two slots. 9 o'clock से होता है 12 तक and then 1 to 3 or 3 to 6 whatever be the coordinator's convenience. और वहां जाके आपको सिंपल एमसीक्यू पेपर देना होता है। प्लस ये जितने भी कोर्सेज हैं इसके अंदर आपको असाइनमेंट्स आते हैं। लेट मी ओपन माय विंडो सो दैट यू विल कम टू नो द रियलिटी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड माई सेल्फ इन दी स्वयं कोर्सेज। तो ये आप लोगों के लिए ही नहीं सभी लोगों के लिए बेनिफिटेड है। इट इज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये उन्हीं का इनिशिएटिव है। सो दिस इज माय पोर्टल, आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम माय पर्सनल पोर्टल आईडी एंड द लिस्ट विल कम जिस जिसके अंदर मैंने एनरोल कर रखा है। सो दीज आर माय कोर्सेज दैट आई हैव एनरोल्ड। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, आर, आप लोगों ने आर की क्लासेस ली है ना, आर सॉफ्टवेयर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर आप प्रोफेशनली चाहते हैं आर्ट सॉफ्टवेयर पढ़ना, सो यस इट इज देयर।
एंड देन मेरा क्योंकि एरिया इज कोर फाइनेंस, आई एम टोटली इनटू फाइनेंस, सो आई जस्ट वांट टू लर्न अबाउट समथिंग अबाउट द इको, बिकॉज आई वांट टू मैम डू इस द तरह की तो बहुत रिसर्च। सारी साइडें हैं ना, इंटरनेट पे भी हाँ, बहुत सारी साइडें मिलती हैं। हाँ जी, वो ही हम सिखा रहे हैं तो आज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में कि कौन-कौन सी साइट्स यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो स्वयं की जो पॉपुलैरिटी है, वो सबसे ज़्यादा है, राइट? इसका जो लेवल है, इसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। बिकॉज़ राइट नाउ आई एम डूइंग अ कोर्स ऑफ एप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, तो देखो मेरा ऑलरेडी इस कोर्स को आई हैव स्टार्टेड और इस तरीके से वीकली आता रहता है। इट इज़ अ 12 वीक कोर्स, सो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस 9th वीक। जब आप लोगों का हर वीक आएगा तो हर वीक के अंदर आपको मटेरियल आएगा, सो व्हेनेवर यू विल क्लिक इट, देखो इतनी सारी वीडियोस आएंगे एंड व्हेनेवर यू विल वॉच दैट वीडियो दिस ब्लू पॉइंट विल कम। इफ you have not watched this video, then the white point will come. You have to fill the feedback also, so this is the course layout and they are using this one. In fact, they are providing me the assignment solution as well as I can download the windows from there. So this is the way that you can access your courses, right? So this is the first thing that I want to share with you कि please go on Swayam courses. You have nothing to do. You can watch your video anytime, anywhere, and it is easily accessible from the mobile. कई बारी क्या होता है हम वीडियो सोचते हैं चलती नहीं है प्रॉपरली, बट इसका वीडियो हमेशा चलता है मोबाइल से भी। सो दिस इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, राइट? पहला मैंने आप लोगों को इसलिए ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज में बताया स्वयं .gov.in के बारे में। नेक्स्ट अब मैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स बता रही हूँ। मैंने एक टर्म बोला था क्रिएटिव कॉमन। सो क्रिएटिव कॉमन इज अ लाइसेंस विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब आपको गवर्नमेंट से ये लाइसेंस लेना पड़ता है। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी और जिसका शॉर्टकट लोगो होता है सीसी। अगर इस साइट में मैं कुछ भी यूज करती हूँ, लेटर से आई वांट टू यूज लॉट ऑफ पिक्चर्स, तो अगर मुझे यहाँ पर से बहुत सारी पिक्चर्स देनी है तो मैं यहाँ से कोई सी भी पिक्चर डाउनलोड कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पर से वर्क पब्लिश है, ये कोई साइंटिफिक रिसर्च है पीएलओएस और ये लिखा है आर लाइसेंस अंडर सीसी विच इज द क्रिएटिव कॉमन साइन। आप इस साइट से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वट एवर इज गिवन। आप उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, फर्दर एड ऑन कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप ही लोगों के लिए डाले गए हैं, सो दैट यू कैन यूज इट, एक्सेस इट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दिस। इनफैक्ट इस साइट के अंदर बहुत सारी फोटोज हैं, क्योंकि कभी-कभी हमको क्या होता है ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए फोटोज वगैरह चाहिए होती हैं। सो वी पीपल वर वरिड कि अरे हम कहाँ से लें, कभी कोई हम पे केस ना कर दे, ये तो मेरा फोटोग्राफ था, व्हाई यू हैव टेकन दिस, दिस इज यूज माय मी, इट इज माय पर्सनलाइज्ड पेटेंट फोटो। तो क्रिएटिव कॉमन आपको प्लेटफॉर्म देता है। इनफैक्ट काफी सारी आजकल साइट्स पे अगर आप देखेंगे मेंशन करते हैं वो लोग दैट प्लीज use this because it is an open access licensed by the Creative Common organization. So this is the official website from where you can download this and it has a very good stuff of material. Although जो अभी material इसमें चल रहा है वो mainly हमारा साइंस से रिलेटेड मटेरियल डल रहा है। अब मेरे को पढ़ना तो बहुत है और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे हैं, सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट ओपन रिसोर्सेज वेबसाइट विच इज ईपीजी पाठशाला। देखो मैंने तो सिर्फ ईपीजी डाला था, मेरे उस पे सबसे पहले आ गया ईपीजी पाठशाला। सो एज द नेम सजेस्ट इट इज एन ओपन ऑनलाइन पीजी पाठशाला क्लासरूम फॉर द स्टूडेंट्स। अब क्या मैं इसमें से एक्सेस कर सकती हूँ? यस, एंड इट इज अ वेरी वंडरफुल साइट। यू कैन एक्सेस फ्रॉम दिस साइट, यू कैन टेक द क्विज, you can download the material. So let me give you an exploring idea. Let us say I am going on e अध्ययन books, तो मुझे अध्ययन करना है, मुझे पढ़ना है बहुत सारा। सो आई एम गोइंग ऑन दिस और ई अध्ययन बुक्स खोला मैंने, तो नीचे ये इतना बड़ा विंडो खुल गया है।
इतना बड़ा ऑप्शन खुल गया है। क्या आप लोग मेरे साथ मैचअप कर पा रहे हैं? विल यू एबल टू टाइप विद मी? यस मैम। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा जहां पर मैं फास्ट हो जाऊं थोड़ा सा, तो मुझे स्टॉप कर दीजिएगा, राइट? तो अब ये देखो, इसके अंदर हर एक एरिया के, ज्योतिष बनना चाहते हो तो ज्योतिष, गणित इज ऑल्सो देयर, लिंग्विस्टिक, यू वांट टू लर्न एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, बुद्धिस्ट, चाइनीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। बट क्योंकि हम तो कॉमर्स, फाइनेंस ऐसे वाले बच्चे हैं, सो लेट मी सर्च इन द कॉमर्स। और कॉमर्स के ब्रैकेट में लिखा है 469, दैट मीन्स 469 रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद देम। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो मुझे वो नई विंडो पे ले गए। हाँ जी, बताइए कौन सा पेपर पढ़ना है, तो बताओ कौन सा। सो लेट मी ओपन दिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। पढ़ते हो ना तुम लोग इकोनॉमिक्स? आई थिंक हर सेमेस्टर में इको आता होगा। ओके, सो वी आर लर्निंग अबाउट द मैनेजरियल इकोनॉमिक, और मेरा नीचे डेटा लिखे आ गया कि टोटल विजिटर्स till this date are this much. And these peoples have already accessed this managerial economics. Such a few number. Now, in the managerial economics, there are n number of topics. So, basic demand and supply. What you want with the basics of demand and supply? E-text. Okay, so we will provide you e-text. So we are providing you the detail in the opening कि भाई ये किसने material बनाया है, who were the contributor, investigator, and so and so and so. These are the table of the contents that you have, the learning outcome that you will receive after learning this. And from the fourth window, the material will be started. What do you mean by demand, law of demand, given goods? Hope everybody is aware with all these terms that is coming on the screen. Any ideas? तो ये उन्होंने आपको डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड पूरा का पूरा बना के दे रखा है। तो कभी कभी जब हम कहते हैं जी हमको तो मटेरियल नहीं मिल रहा, कहाँ से पढ़ें, तो यूज दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेस। इसमें ये भी बताया है कि सारा का सारा मटेरियल एंकर इंस्टीट्यूट खालसा कॉलेज से बना है। So if you want to learn more, okay, so know something more, so 3 पेज का आपके पास एडिशनल भी है। और ज्यादा सीखने के लिए उन्होंने आपको क्या दिया है जी, समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है मटेरियल में। सो दे हैव प्रोवाइडेड यू लॉट ऑफ एथिकल, जो सब एक्सेस कर सके, यूट्यूब लिंक्स दे हैव प्रोवाइडेड इन डिटेल, और आप इन सबको यूज कर सकते हैं। Then you have the self learning, तो they provided you the video also कि भाई मेरे को तो ये इतना पढ़ पढ़ के समझ नहीं आता, so they will dictate you and explain you. So some specific tutors are also there. So 3 options are there for a same topic: e-text, learn more, that means the additional resources if you want to add on with yourself, and self learning. This is only the one topic in the managerial economics, and they have 469 of this. Now student corner is also there. So student corner is same. तो मैंने जितना सीखा, can I check my knowledge? So this is the self knowledge test. इन्होंने आपके लिए ऑनलाइन क्विजेस भी बना रखे हैं. This is the online quiz system. तो आप इसके अंदर सब्जेक्ट नेम डालेंगे, एंड आवर सब्जेक्ट नेम वाज कॉमर्स। और मैंने इसके अंदर अभी 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 नया नया पढ़ा था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पेपर, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आई हैव टेकन द डिमांड। तो इसके अंदर जिस जिसके बने हुए होंगे, चलो जी डिमांड शायद ये होगा, तो ले लेते हैं। तो उसके क्विजेस ओपन हो जाएंगे। सो दे हैव गिवन मी योर स्टार्टिंग टाइम ऑफ एग्जाम इज एट 15:26, दैट मीन्स ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड द टाइम फॉर द क्विज इज 5 मिनट्स, जिसमें ये उल्टी गिनती करना शुरू हो गया है। 5 ही क्वेश्चन है, 1 out of 5 इसमें लिखा है, एंड यू विल टेक द क्विज एंड यू कैन जज योर knowledge. So EPG पाठशाला is very important. It is a very very strong source of information. हमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें मैथ्स नहीं आता मैम, so you have a big source of mathematics in this EG पाठशाला. कैलकुलस आप पढ़ते हैं, डिफरेंशियल पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ना हो, दे हैव गिवन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पढ़ते हो ना ये सब। स्वयं पे भी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे यू विल मैम ये बिल्कुल रिसीव। फ्री है।
ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको किसी सेंटर पे जाके पेपर देना है. इट इज जस्ट अ गेटवे टू ऑल द कोर्सेस, राइट? दिस इज फ्री. यू कैन डाउनलोड एनी मटेरियल फ्रॉम हेयर. देखो ना, पेपर लिखा है, मॉड्यूल लिखा है. जब पेपर और मॉड्यूल मिल गया तो मेरे को मटेरियल मिल गया. लेट मी ओपन वन मोर. इन्होंने तो किसी कोर्स की बात ही नहीं करी. बट ऐसे में सिर्फ आपको एक डिसएडवांटेज रहता है, नॉलेज तो आपको आ गई, ऑनलाइन क्विज भी आपने कर लिया, एक चीज नहीं मिली किसी को ये बताने के लिए कि देखो मैंने इतनी मेहनत करके ये पूरा पढ़ा, पूरा मटेरियल पढ़ा और मेरे इतने मार्क्स आए. So for that you need certificate. Swayam will give you that facility. EPG Pathshala is totally a resource based. It is an open educational resource in a true sense, right? Swayam will benefit you in two ways. They will give you the open educational resource and they will certify your work also. Is this part clear? So let me move to the third website. After this, लेट मी ओपन वन यूट्यूब चैनल. नहीं, उसी की पहले मैं वेबसाइट खोलूंगी, फिर उसका यूट्यूब चैनल ओपन करती हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये उनका यूट्यूब चैनल है, बट आई एक्चुअली वांट टू ओपन देयर साइट फर्स्ट. सीईसी की एक स्पेसिफिक साइट भी है. सीईसी यूजीसी करके देखते हो. Yes, cec.nic.in. This is the site. तो उन्होंने आपको ये सीईसी की साइट बताई है, और देखो जो हम आज के सेशन में वर्ड यूज करें, दे हैव स्पेसिफाइड इन अ पर्टिकुलर टैब. वी हैव मूक्स आल्सो. व्हाट, एनी आइडिया अबाउट दिस टर्म MOOCs? मूक्स. Anyone has any idea about these terms? No. Okay. MOOCs is the massive open online courses. I am again repeating. MOOCs is massive, large लोगों के लिए open ऑनलाइन कोर्सेस. इसके अंदर जैसे हमने स्वयं में कोर्सेज करें, इसके अंदर सीईसी के मूक्स में वो वाले कोर्सेज आ जाते हैं. तो आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ. अब आपको इसमें प्रोजेक्ट्स करने हैं, मूक्स करने हैं. यूजी लेवल के मूक्स करने हैं या पीजी लेवल के मूक्स करने हैं, आपको अपना प्रपोजल देना है कि भाई मैं एज अ कोऑर्डिनेटर एक प्रपोजल सबमिट करना चाहती हूँ. और अगर आपको एनरोल करना है तो यू नीड टू एनरोल योरसेल्फ ओवर हेयर. सो यू पीपल आर ऑल यूजी लेवल, सो आई एम क्लिकिंग दिस यूजी मूक्स. और ये देखो, इतनी लंबी कहानी इन्होंने खोल दी कि सीईसी अंडर ग्रेजुएट मूक्स इन आइटम्स को ऑफर करता है जुलाई टिल दिसंबर 2021. सो आई एम ऑलरेडी फेवरेट ऑफ कॉमर्स, सो लेट मी ओपन दिस कॉमर्स. अब इन्होंने तीन लिखा था तो तीन कोर्सेज बताए होंगे. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन. आप लोग पढ़ते हैं क्या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स? यस मैम. ओके, तो ये आपका खुल गया बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स. और ध्यान से ऊपर देखो, ये साइट मुझे कहाँ ले गई वापस. कैन यू सी द लोगो एट द टॉप? यस मैम. क्या हमने इस पोर्टल के बारे में बात कर ली है? यस. तो ये नोडल पॉइंट है. अगर आप कोई भी मूक्स करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ही है सीईसी भी, तो उन्होंने स्वयं पोर्टल का साइन लगा दिया और ये सीईसी का लोगो है. साथ में ये लग गया कि अब आपको जो भी कोर्स दिखेगा उसका कोऑर्डिनेटर सीईसी होगा, लेकिन वो पोर्टल कौन सा यूज करेगा? स्वयं पोर्टल. तो मूक्स आप कोई भी करोगे, आपको मूक्स के लिए वापस किस पे जाना पड़ेगा? स्वयं पोर्टल पे जाना पड़ेगा. लेकिन आई डोंट वांट टू डू मूक्स. I'm sorry, I'm not at all interested in doing all this kind of courses. I just need material. So I can use this open educational resource. Let me open it. This is the full form OER that we are using it today.
So empowering the knowledge power, skill initiative classes, flipped classroom, curriculum classes, beyond classroom, concept class. अरे ये तो खत्म हो गया, अब मैं कोर्सेज कहाँ से दिखेंगे मुझे? From where we will find out the content. So learn more. करिकुलम क्लासेस की इन्होंने डिटेल बताई, वीडियो है इसके अंदर, वो वीडियो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर राइट नाउ एट द गूगल मीट। और जैसे ही मैंने करिकुलम क्लास को खोला वो मुझे टैब पर ले गया विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिटेल। क्या पढ़ना चाहते हो? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो यू हैव एन नंबर ऑफ द डेटा टू लर्न। मैनेजमेंट एंड वोकेशनल, सो यू हैव एन नंबर ऑफ द डेटा टू लर्न। सोशल साइंसेस, सो यू हैव एन नंबर ऑफ डेटा टू लर्न, और हर एक के अंदर प्लस का साइन है, दैट मीन्स वो उसके अंदर भी बहुत सारा मटेरियल पढ़ा रहा है। तो लेटर से मैंने इकोनॉमिक्स का ओपन किया, और इकोनॉमिक्स में इंडियन इको मुझे मालूम है एक सब्जेक्ट होता है आप लोगों का, तो आई हैव ओपन द इंडियन इको। और इंडियन इको ओपन करके अब इंडियन इको की कहानी उसके अंदर पूरी आ रही है। प्री ब्रिटिश पीरियड स्ट्रक्चर, और जो भी इंडियन इको में होते होंगे रिलेटिव्स इश्यूज, तो ये उन्होंने पूरी लंबी लिस्ट कि आपको इंडियन इको में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, 69 पॉइंटर्स तक की लिस्ट दी है इन्होंने। अब ये पढ़ने कैसे हैं वो भी मैं समझा देती हूँ। उन्होंने कहा है जो चूजन मॉड्यूल है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड मैम ये है। ग्रेजुएशन लेवल पे ये इंडियन इकोनॉमिक्स इसमें। हाँ, ये आपको कंटेंट चेक करना पड़ेगा क्योंकि किसका लेवल कितना है, दैट यू विल कम टू नो ओनली विद दिस। दे हैव नॉट बाइफरकेटेड द कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूजी एंड पीजी लेवल। क्योंकि 69 टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सारे के सारे यूजी के होंगे या सारे के सारे पीजी के होंगे। दे हैव क्रिएटेड इट फॉर अ जनरल सेंस, राइट? ये देखो, इतने सारे टॉपिक्स हैं। अब उन्होंने बताया ये पढ़ोगे कैसे, तो जो आपका मॉड्यूल है, जो ये सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स, ये इन्होंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। दिस इज रिटन एट द राइट साइड। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका टेक्स्ट कंप्राइज करता है, दैट मींस टेक्स्ट रिसोर्सेज, जैसे हमको चाहिए था मटेरियल, सो दैट विल बी देयर। सेकंड वाला आपका विजुअल रिसोर्स होता है, तो यानी किसी बंदे की, किसी टीचर की आपके लिए कोई वीडियो होगी टू टेल यू और टू एक्सप्लेन यू दैट टॉपिक। थर्ड क्वाड्रेंट इंक्लूड करता है वेब रिसोर्सेज, जैसे हमने उस केस में भी देखे थे ईपीजी पाठशाला में यूट्यूब लिंक्स वगैरह थे, सो माइट बी दे विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट विल गिव यू दिस सेल्फ असेसमेंट। तो ईपीजी के अंदर भी क्विज ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर भी क्विज ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है। अब इट कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट आई डोंट नो। So please navigate through these quadrants to explore the various segments of E module. अब ये क्वाड्रेंट का है, जब आप कर्सर डाउन करते जाएंगे यू विल गेट दिस 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। मेरा पहला क्वाड्रेंट क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा पहला क्वाड्रेंट ऑलरेडी विजिबल है मुझे। अब इस क्वाड्रेंट को भी इन्होंने देखो हिस्सों में बांटा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स पूछने इस टॉपिक के, समरी पूछनी है इस टॉपिक की, FAQs क्वेश्चंस पूछने हैं, व्हाट इज हिस्ट्री नेसेसरी टू स्टडी एंड सो ऑन। तो इन्होंने ये पूरी की पूरी हिस्ट्री दे रखी है, दैट इज इजीली डाउनलोडेबल। ग्लॉसरी हम पहले पढ़ते थे ना, डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टर्म्स, सो दे हैव गिवन यू द ग्लॉसरी आल्सो। एकेडमिक स्क्रिप्ट पूछी है, यानी कि पूरा का पूरा मटेरियल पूछा है भाई फ्रॉम द स्टार्टिंग। टेल मी इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, नहीं, सो इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, और ये सारा मॉड्यूल इज डाउनलोडेबल। This is given, all these subheads are given in the first quadrant in economics, Indian eco, pre-British period structure and organization of villages, part 1. The producer, that means the organizer of this is this person. No, मैं नहीं पढ़ सकती इतना मटेरियल 11-11 पेज का। सो लेट मी स्विच टू द लर्निंग लेसन। मैं चाहती हूँ भैया मेरे को बता दो तुम ये मॉड्यूल चला चला के। सो व्हेन यू विल प्ले दिस, क्योंकि मेरे में प्ले बटन नहीं आ रहा है, वीडियो इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ गूगल मीट, अदरवाइज इट विल बी प्लेड। तो ये नॉर्मल यूट्यूब से कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर भी आपके 3 हिस्से हैं, मॉड्यूल 1 2 3।
देखा ध्यान से, मैंने जब 1 किया था तो 1 आ गया, मौर्यन पीरियड 2 में एक्सप्लेन होगा, और गुप्ता पीरियड जो थी, गुप्ता डायनेस्टी थी हमारी, वो मॉड्यूल 3 में एक्सप्लेन होगी. सो दीज आर द वीडियो रिसोर्सेस. Then in the third quadrant, what will you get? Oh, you get the references. That means the additional sources from where this material has taken. तो उन्होंने mention भी किया है. मैंने 1990 में किसी ने कार EH ने लिखा था what is history. So we have taken this materials for making this web and text resources. तो इसको हम बोलते हैं references. And what will be there in the self-assessment? This is the fourth quadrant. So you have two types of assessment over here. One is the assignment part and other one is the quiz part. Quiz must be an MCQ quiz and this one is the assignment. हो सकता है किसी किसी में सिर्फ असाइनमेंट हो, क्विजेस ना हो, तो ये इन लोगों की ऑप्शन होती है जो भी इस करिकुलम को डिजाइन करता है, उनके पास ऑप्शन होती है कि वो क्विज और असाइनमेंट दोनों डालें, सिर्फ क्विज डालें या सिर्फ असाइनमेंट डालें. इट्स अप टू दिस. तो CEC इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडरेटर टू एनहांस योर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस. अब इसी के ही होम बटन पे मैं दोबारा जा रही हूँ. इनके ऑफिशियली वेब चैनल्स हैं. So they have the web channel which is given with the name of CEC Vyas. तो आप अगर इस व्यास चैनल पे लॉग इन कर लेते हैं और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है तो ये आपको सारा का सारा ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ से मिल जाएगा. कब कौन सी चीज टेलीकास्ट होएगी वो यहाँ पे आ जाती है. आप इसके अंदर सर्च विंडो भी कर सकते हैं यूज बाय यूजिंग द नेम और द डेट यू वांट टू सेट विद द स्केड्यूल. आज 24 सितंबर है तो उन्होंने आज का स्केड्यूल डाल रखा है कि आज 6 से 6:30 ये आएगा, 6:30 to 7 this will come, then 7 to 7:30 and so on. So you can use this Vyas channel also to learn from this, and that is free of cost. Now we have a beautiful channel, YouTube चैनल. CEC वालों का अपना YouTube चैनल है, पर्सनल चैनल है, पेड चैनल है, पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चैनल है ये. इसके अंदर आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो UGC अप्रूव्ड मटेरियल है, ऑथेंटिक मटेरियल है, क्योंकि जो इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स इसमें लिए जाते हैं वो पहले उसके लिए क्वालिफाइड होते हैं तभी लिए जाते हैं. अब लेट अस से आई वांट टू चेक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइटम्स आर देयर. तो ये ऐसे मैं चलाती जाऊंगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो देखो इन्होंने इतनी सारी व्यू प्लेलिस्ट बना रखी हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश. So they have done it beautifully. Management and other professional. क्रिएटेड प्लेलिस्ट, गाना वाना सीखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिल्मों के बारे में जानना है, फिल्म. देन यू हैव रिलेटेड मटेरियल विद द साइंस आल्सो, हेल्थ केयर एंड एवरीथिंग. सो they have a long playlist. You can go through that playlist, subscribe on this channel, you will get this notification. आपको जिस भी एरिया में सब्सक्राइब करना हो आप उसमें जा सकते हैं. चलो जी, लेट मी एक्सप्लोर दिस सोशल साइंस चैनल. और जब मैं सोशल साइंस चैनल को खोलूंगी तो वो बता रहे हैं ये और भी हैं इसकी, डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट, डायनामिक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सो ऑन. सो दिस इज देयर पेड यूजीसी चैनल और जिस जो चलाता है CEC कोऑर्डिनेटर, राइट. चलिए अब नेक्स्ट टैब ओपन करें. सो लेट मी ओपन सम इंटरनेशनल साइट्स. अब क्योंकि मैंने इंडिया से तो काफी मुझे पता लग गया पढ़ाई का मटेरियल मिल रहा है, क्या मुझे बाहर वाले लोग भी ऐसी फैसिलिटी देते हैं? तो यस, वी हैव अ वेरी गुड फैसिलिटीज विद द इंटरनेशनल वन. जैसे एक साइट है प्रोजेक्ट यूक्लिड. आई एम रिपीटिंग, प्रोजेक्ट यूक्लिड. ये डेडिकेटेड साइट है फॉर द मैथ्स. जब भी मैथ्स में अटक जाओ, भूल गए, समझ नहीं आ रहा डेरिवेशंस कैसे होंगे, दिस इज द प्रोजेक्ट यूक्लिड.
ओनली फॉर द मैथमेटिक्स। आपको इसके अंदर इतना मैथ्स मिलेगा, इतना मैथ्स मिलेगा कि आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे। इनफैक्ट इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। अभी इसके अंदर लेटेस्ट पेपर हुआ था इसके अंदर अपलोड कि हाउ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड कैन बी मैथमेटिकली कंप्यूट, कैन वी क्रिएट एनी इक्वेशन. So these kind of papers are there. So you have libraries, you have the access of 2.5 million pages of websites. Whenever you will open it, mathematical physics, normal mathematics, statics and probabilities, because you people deal with the statics and probabilities, so this site is dedicated only for the maths world. हमारा प्रोजेक्ट यूक्लिड एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए है फॉर द मैथमेटिक्स वन. Then let me take one more international website, and yes, this will be beneficial for you. Science Direct Open Access Content. दिख रहा है टर्म? आप लोग साथ साथ टाइप कर पा रहे हैं मेरे? Or you are just watching me? Yes, ma'am. मतलब it's up to you. You can later on watch this on the YouTube also. But actually, I just want you please note down all these sites, because sooner or later that will benefit you. So you have one more site, Science Direct Open Access Content. As the name suggests, हमने Science Direct में सिर्फ Open Access Content वालों को क्लिक करा, और उसके बाद ये देखो, Let me browse this journal and books. तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें तो इतने सारे आ गए हैं. So let me browse this only open access. सो दिस इज एन ओपन एक्सेस. इसके अंदर अब ओपन एक्सेस में कभी कभी क्या होता है, ये फुल बुक जो लिखा है पूरी की पूरी बुक्स डाउनलोड नहीं होती हैं. कभी कभी कुछ पेजेस डाउनलोड हो जाते हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स रह जाते हैं. कभी कभी पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाती हैं, और कभी कभी इसके अंदर सारी की सारी आइटम ही आपको परचेज करनी पड़ती हैं. जैसे इसके अंदर ये लिखा है, ये इंडेक्स है, इट इज फ्रीली डाउनलोड, दैट यू सपोज टू बी परचेज. तो इसके अंदर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है फॉर सर्चिंग एनी बुक. सो दिस इज द डिफिकल्ट वन, बट येस यू विल गेट गुड बुक्स ओवर हेयर, क्योंकि ये बहुत ही सारी रिलेटेड बुक्स हैं इसके अंदर, और बहुत सारे फील्ड्स की इसके अंदर अवेलेबल है. आफ्टर दिस देयर इज वन मोर इंटरनेशनल साइट, Taylor and Francis Open Access. I am again repeating, Taylor and Francis Open Access. I am mentioning this word Open Access so that कि मुझे Google उसी साइट पे लेके जाए जो Open Access वाला है. So what is Open Access, and everything is written over here. So this is the Open Access. ये उनका publication Open Access है. और इसके अंदर अब मुझे ओपन एक्सेस मटेरियल देखना है. तो आप क्या जर्नल्स देखना चाहते हैं या आप बुक्स देखना चाहते हैं? तो मैंने दोनों ओपन किए हैं. So publish your research in open access books, and lot of open access books we have. View open access books and chapters over here. So when you will click this, you will able to explore it and you will go it in a detail. ये देखिए इस तरीके से ये बुक्स आ जाती हैं. इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी इन्होंने डिवाइड करा हुआ है. अब जैसे मैंने सोशल साइंस कनेक्ट किया, तो भाई सोशल साइंस के अंदर आपको कौन कौन सी चाहिए, सो दैट विल कम. इकोनॉमिक्स कनेक्ट किया तो उसके अंदर उन्होंने लिस्टिंग दे दी है. इस तरीके से ये बुक्स का डिटेल आ जाएगा. नाउ लेट मी टेक यू टू सम डेटा साइट्स, क्योंकि मुझे मालूम है आगे आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं. डेटा से पहले 2-3 साइट और दिखा रही हूँ. ये साइट शायद आपने सुनी भी होंगी. कोर्सेरा सुनिए. यस मैम. दिस इज अ वेरी गुड साइट, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोर्सेरा में देखा है नंबर ऑफ आवर्स बेसिस के कोर्सेज होते हैं. आपको उसमें एक्सेस दे देते हैं जब आप लॉगिन करते हैं, और उससे आप बहुत सारे मटेरियल को एक्सेस कर पाते हैं. इनका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है. आजकल जो सबसे ज्यादा हाइप है इस कोर्सेरा पे, क्योंकि इन्होंने गूगल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करा है शुरू.
ये आजकल के बच्चों की बड़ी ही डिमांड है। सी इट इज रिटन दैट दिस विल बी रेटेड बाय 4.8 स्टार 21,004। तो आपको ये डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करवा रहे हैं और आजकल के बच्चे ये वाला कोर्स बहुत करते हैं। सो एनरोल फॉर फ्री, अगर आप एनरोल फॉर फ्री करते हैं, फाइनेंशियल एड इज आल्सो अवेलेबल। लेट अस से एज अ स्टूडेंट आई एम नॉट हैविंग दिस, क्योंकि उसने मुझसे गूगल आईडी मांगा था तो मैंने अपने गूगल आईडी कॉलेज वाले से उसको क्लिक कर दिया एंड नाउ दे आर आस्किंग मी दिस इंफॉर्मेशन दैट आई डोंट वांट टू फिल नाउ। So let me go back. तो ये उन्होंने मेरा होम टैब खोल दिया है, although I don't want this home tab because I am searching, I am exploring right now. सो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो विंडो पॉपअप आ जाएगी कि आपको डेटा साइंस चाहिए, बिजनेस चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। ये so this kind of things are also be there in this Coursera site. एंड दीज आर वेरी गुड कोर्सेज जो सबसे पहले विंडोज पे आ रहे हैं। रिसेंटली व्यूड कोर्सेज हैं गूगल डेटा एनालिटिक्स, गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है, इनका सर्टिफिकेट भी टाइमली आ जाता है। इनके जो असेसमेंट्स हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। कुछ कोर्सेज तो ऐसे होते हैं 7 आवर्स का, 13 आवर्स का, 20 आवर्स का। So I think you people can spend a lot of time on this type मैम of एक work. TCS आयन करके भी साइट है, TCS आयन। चलो चलो वो भी खोलते हैं। अब हमारे को एक बच्चे ने साइट बताई है, सो लेट मी एक्सप्लोर दैट आल्सो। TCS IN, राइट? ये तो मुझे इंटर्नशिप की साइट ज्यादा लग रही है। आई एम नॉट गेटिंग दिस साइट। मैम चलिए ये आप ION। IOM, ओके, ION, ओके ओके। सो दिस इज द TCS ION डिजिटल लर्निंग। तो देखो आप लोगों से भी हमको एक पता लग गया। ओहो, a collaborative learning platform on the power learners कौन है? instructors, administrators, so you have to log in। और ये digital हमारा टाटा वालों का दिया हुआ है and in this way you will able to do it। just to view this I am just log in with my official mail ID। oops, your social login is not registered, okay। तो ये आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा। दिस इज नॉट ओपनिंग विद माय ऑफिशियल आईडी। लेट मी टेक यू टू वन मोर साइट। After Coursera, one more famous site is there that must be heard by you, EDX। EDX के कोर्सेज बहुत ज़्यादा फेमस हैं आजकल। रीज़न बीइंग EDX के कोर्सेज ज़्यादातर बाहर की यूनिवर्सिटी से हैं। मेनली ये साइट्स पे हम लोगों के टेक्निकल सेशंस ज़्यादा हैं, जैसे जो हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उन लोगों से ज़्यादा रिलेटेड हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस। See, there is a long way programs and degree. There is a long section of view the courses. And in viewing the courses, you can find out this data analysis and statistics as we have seen in the Coursera. Then you have economics and finance, training, education, engineering, ethics, science, so on. Even for the maths, you have a specific field. तो आप इसके अंदर भी अपना कोर्सेज कर सकते हैं। आई हैव जस्ट लॉग इन टू द एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। फिर उसके बाद उसने मुझसे ऑप्शन पूछा, भाई इकोनॉमिक्स में तो हमने इतने सारे सब टॉपिक्स ले रखे हैं, आपको कौन सा चाहिए है? तो बिटकॉइन आजकल बड़ा बूमिंग टॉपिक है। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, हमारा जितना भी फिनटेक कंपनीज काम करती हैं वो इसी पे काम करती हैं। ये देखो मैंने फिनटेक ब्लॉकचेन बोला था, फिनटेक अपने आप लिखा आ गया। एनी आइडिया अबाउट दिस फिनटेक वर्ड? because these are booming words, these are market words। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज, सुना है कभी ये सब वर्ड? यस मैम। और जिन्होंने नहीं सुने तो प्लीज सुनो, क्योंकि आजकल की मार्केट में आगे आगे आपको यही सब जानने को मिलेगा। तो नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं हम बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय बिटकॉइन, व्हाट यू विल लर्न इन द बिटकॉइन, व्हाट काइंड ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड द कोर्सेज यू हैव। और इन वाले कोर्सेज की ज्यादा ज्यादा फीस भी नहीं होती। मैंने एक बार ही देखा था, इसमें कभी कभी तो ये डिस्काउंट फैसिलिटी भी देते हैं। 400-500 रुपए का कोर्स 200-250 रुपए में करवा देते हैं।
तो ये देखो ऊपर ऑफर भी आ रही है, यूज कोड SEPT20 ऑफर वैलिड फॉर दिस, सेव 20% ऑन योर एंटायर परचेज, मतलब जितना भी उसका पैसा होगा उस पे 20% डिस्काउंट लग गया एज इफ यू आर बाइंग अ क्लोथ। तो EDX में काफी आती हैं स्कीम्स, आई हैव सीन दिस स्कीम्स नंबर ऑफ द टाइम्स। नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर वन मोर डिजिटल लाइब्रेरी टू यू so that you will have a good access of all the types of resources. National Digital Library of India. ये हमारा जो IIT खड़गपुर है उन लोगों ने इसको बनाया है, वो ही इसका पोर्टल संभालते हैं। लेकिन ये जो साइट है ये अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ के कोई भी रिसोर्स दे सकता है। सो इफ यू वांट टू स्टडी एट होम एज द हेडिंग इज रिटन ओवर हियर, you can take the engineering, science, humanities, law and management. I have more students of the law and management, so I am just clicking over there. Now they are asking in the management you have video lectures, questions and solution, books and notes. So let me take this. अब वीडियो लेक्चर CEC, हमने CEC की बात करी अभी, Yes, ma'am. करी थी, तो हमको तो CEC की प्लेलिस्ट में ही ये वाला मिल जाएगा, ये भी उसमें मिल जाएगा। हमको अब इसके अंदर NPTEL, ये NPTEL वाला भी आपके स्वयं पोर्टल पे अवेलेबल होगा। सो डोंट यू वरी, जो हमारा स्वयं पोर्टल है उसमें एक कोऑर्डिनेटर NPTEL ही है, एक कोऑर्डिनेटर IIMS भी है वहां पे। तो लेट अस से मेरे को मैनेजमेंट बुक्स, नोट्स, आर्टिकल्स, थीसिस जानने हैं। लेट मी टेक इनटू दैट। तो डिजाइन ऑफ डिस्प्ले बेस, नेशनल कॉस्ट ऑफ टेलीविजन इन द ईयर, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द डेटा इज टू आउटडेटेड इन सम केसेस, but yes, sometimes if you need this data, like this one, short term investment forecasting and exploratory study, आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं, इसका मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर बहुत मटेरियल है, क्योंकि अभी हम लोग तो 1 आवर का सेशन ले रहे हैं, सो वी आर जस्ट शोइंग यू अ ग्लिम्स, बट एक्चुअली इट इज अ हब ऑफ रिसोर्सेस। तो इसके अंदर उन्होंने URL बताया है, कलेक्शन ऑफ बुक्स बताई हैं, 579 बुक्स आर देयर। सो हर एक के अंदर अब आपका डेटा बढ़ता जाएगा, बट यस इट इज अ वेरी गुड सोर्स। ऐसे ही एक IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे ने भी अपना पोर्टल बनाया है। आई एम नॉट शोइंग दैट IIT बॉम्बे पोर्टल राइट नाउ, रीजन बीइंग उसके अंदर बहुत लिमिटेड ओपन एक्सेस कंट्रोल है, बट जो है उसके अंदर वो अच्छा कंटेंट है। अब मैं आपको थोड़ा-सा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में मुझे डेटा भी चाहिए होता है, क्योंकि आजकल बूम है हमारा कि हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो वी नीड लॉट ऑफ डेटा, सो फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस डेटा? सो लेट मी टेक यू टू दैट। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डेटा इंडिया, this is one of the website, and this is the website of Ministry of Statistics and Program Implementation. The government of India has issued this website, so government has done actually lot of work. तो हम लोगों तक पहुंचता नहीं है क्योंकि हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डैशबोर्ड, डू यू वांट टू डाउनलोड द रिपोर्ट्स? सो यस, यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट्स फ्रॉम हेयर। अब वो पूछ रहे हैं आपको किस डाउनलोड करनी है, कौन सी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, बिकॉज दे हैव गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ओवर देयर। National Sample Survey Report, Statistical Publication, Annual Report of Ministry, Program, Statistics Manuals and so on. इस तरीके से ये आप लोगों को तरह तरह का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने देता है और आप इसका एक्सेस कर सकते हैं बड़े अच्छे से। ऐसे ही एक और साइट है हमारी वर्ल्ड बैंक की, मैं अब वो साइट दिखाऊंगी। डेटा बैंक, वर्ल्ड बैंक। अब ये देखो डेटा बैंक, वर्ल्ड बैंक की साइट इफ आई विल ओपन, डेटा बैंक वर्ल्ड बैंक का होम आ गया है, जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारे डेटाबेस। सो आई एम जस्ट टैपिंग दैट डेटाबेसेस।
अब इसके अंदर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक. Public means it is an open access, anybody can access. So they have given you the permission, yes you can use it, right? सब पे लिखा हुआ है देखो public, public. So world development indicators कौन से हैं? अब उन्होंने ये बताया है. डेटाबेस अवेलेबल है, कितनी कंट्रीज का अवेलेबल है? 266 कंट्रीज का अवेलेबल है. यू वांट टू फिल्टर द डेटाबेस, तो वो कहते हैं हाँ भाई मेरे को क्या करना है इतनी सारी कंट्रीज का, मुझे तो इंडिया का दिखा दो. इंडिया है इसमें तो चेक कर लेते हैं. इंडिया है तो आई हैव क्लिक दिस इंडिया. फिर उसके बाद सीरीज उन्होंने पूछी, भाई कौन सी सीरीज देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, कितने टाइम की देखना चाहते हो. तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कौन सी वाली देखना चाहोगे. मुझे जीडीपी पढ़ाया था स्कूल टाइम पे, मुझे नहीं पता इनमें से कौन से वाले जीडीपी हैं, बट आई एम जस्ट पुटिंग अप दिस जीडीपी, राइट, जीडीपी ग्रोथ एनुअल. तो मैं यही देखना चाहती हूँ. ओके नहीं ये तो सारे आ गए भाई, सॉरी सॉरी. I want to filter and I want to use GDP. Enter. Now the last item will be left and which is your time. तो वो कहते कितने टाइम का देखना चाहते हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल. सो यू हैव टू मेंशन द टाइम ओवर हेयर. और इस तरीके से आप जब इसमें अप्लाई चेंजेस कर दोगे, यहाँ पर आपका प्रीव्यू, आपकी डिटेल बन के आ जाएगी. मेरे में अभी टाइम सेलेक्ट नहीं हुआ है. अच्छा चलो 15 साल सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके एंटर. अप्लाई चेंजेस वाला विंडो पॉपअप हो गया एंड इट इज लोडिंग. वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड वाला साइन बना हुआ आ गया है ग्लोब का हमारा. और सी यू कैन गेट दिस डिटेल कि इतना इतना जीडीपी था इतने इतने टाइम पे. 20 साल का डेटा मांगा था, पता नहीं कितने साल का मांगा था. 2006 से हमको 2020 तक का उसने डेटा दे दिया. 15 साल का मांगा था टाइम सीरीज में हमने. तो इस तरीके से आप वर्ल्ड बैंक से डेटा निकाल सकते हो, टेबल्स एक्सक्यूज मी निकाल मैम. सकते हो. हाँ जी बेटा. मैम 4 बज गए. अच्छा ठीक है बेटा, 2 मिनट और दे दो. राइट. हाँ. One more site which is very important nowadays, Niti Aayog. It is also sent by the government. ये भी हमारा पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, so freely access. Niti Aayog, as the name mentioned, National Portal of India, and it has the publication. So the publication is there related to their annual reports, working papers, policy papers, research papers. आप लोगों को हम बोलते हैं पेपर्स लिखिए, बट पेपर्स लिखने के लिए पेपर्स पढ़े कहाँ से. तो यूज दिस पोर्टल. हमारे यहाँ पे एसडीजी गोल्स पे बहुत काम हो रहा है. दिस विल टेक यू टू द एक्सटर्नल साइट. इंडिया में भी एसडीजी गोल्स का ब्यूरो है, क्योंकि एसडीजी गोल्स की ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया को देना पड़ता है. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने माइंड मैपिंग में भी एसडीजी गोल्स का एक रैंकिंग दिखाया था. दैट रैंकिंग इज टेकन बाय मी फ्रॉम दिस नीति आयोग ओनली. नीति आयोग की साइट में एसडीजी ओपन ओपन ओपन. yes it is open. So you want to explore the index? Yes I want to explore the index. And in this way we will get this SDG index. और ये डाउनलोडेबल है, ये 2020 का है. अब इससे पहले का चाहते हो सो यू कैन ड्रॉप डाउन दिस मेनू और अवेलेबल है. SDG इंडिया का चाहते हो या पर्टिकुलर स्टेट्स का चाहते हो, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर हेयर. और आप ये पूरे के पूरे चार्ट्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं, you can download it freely. It is available to everyone. Similarly, they have also given you the documents and the reports or the publications, like annual reports are there, and working papers and policies are there. Working papers and policies are more beneficial for you कि हमारे यहाँ पे आजकल रिसर्च में कैसा कैसा काम हो रहा है. बच्चे ये जानना चाहते हैं मैडम नया नया क्या है. So please go through this site. You will learn n number of new things. It is already given that you can download with this icon, right? I hope that's it for today. आप लोग बताइए मुझे.
wind up कर दूं because you have Yes, the ma'am. paper also, Yes, ma'am. right? So I am closing this session. Attendance, okay. Let me stop this recording first.